For 4 months of my CA finals leave, I used to wake up daily at 5 a.m. sharp and I used to sleep at 10 p.m. sharp every single night. मुझे आज भी याद है जून 2019 से नवंबर 2019 ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जहाँ पर मैं 5 AM या रात को मैं 10 PM को सोया हूँ. Honestly, that was the discipline that I had, and trust me, that was one of the differentiating factors that really helped me in order to clear my CA exams with all India ranks in all the 3 levels. Well, of course, the point here is that I'm not telling you to wake up at 5 AM each and every single day, or I'm not telling you कि आपको रोज 10 बजे सोना ही है. All I'm trying to say is that you have to make a timetable and you have to follow that timetable very diligently, very meticulously and very consistently each and every single day. अगर आप रात को पढ़ाई करते हो तो you have to make a timetable and you have to make a routine कि आप रोज एक ही टाइम पे सो और एक ही टाइम पे उठो so that you don't disturb your sleeping habit and you are consistent throughout the day. So in this video I am going to share how was it possible for me to wake up each and every day at 5 AM, sleep at 10 PM, how to maintain that discipline and what are some of the techniques that really helped me in order to stay consistent. But before we begin, I'd like to thank PW for sponsoring this video. They are coming up with a CA intermediate batch called Udesh which has started from 16th August and this is valid for May 2024 attempt students. The faculties who are teaching have already had an amazing record of having 198 rank holders and one of the students had also scored 99 out of 100 in costing subject. They have a teaching experience of 10 plus years and have been into the coaching industry. There will also be a one-on-one mentorship on the platform. They are offering fast-track batches for both groups with a test series. There will be live and recorded classes and every Sunday practice tests for 2 subjects will be provided. Also, experience their thorough coaching and excel in your exams with their course CA Sampurna 2.0. A live doubt solving session is also happening every week and they've got amazing CA foundation results where 65% of their students passed the exams and 15% got distinction in all the subjects. If you are someone who's looking for CA intermediate coaching, click on the link in the description box and you can use my code KL250 to get additional rupees 250 discount as well. Now coming back to the topic, right, have a look at this Excel sheet which is there in front of you. You can have a look here where I used to meditate daily from 5 AM to 5:30 AM. 5:30 AM to 8 AM I used to study a theoretical subjects which used to happen for 2.5 hours. For example, अगर law या auditing subject है तो मैं ये दोनों subject उठाता था सुबह because if I'm reading it from a fresh piece of mind that used to help me in order to memorize them in a very effective manner. 8 to 8:15 AM को मैं shower लेने चला जाता था so that I feel refreshed after just taking a shower. 8:15 to 8:45 AM मैं breakfast 1 करता था. The reason I'm telling breakfast 1 because मैं 2 breakfast करता था, एक 8:15 AM को और एक 10:45 AM को. तो ये breakfast 1 would be let's say पोहा या तो इडली या उपमा जो भी मॉम बनाती थी and I used to have it at 8:15 AM. 8:45 AM to 10:45 AM वापस एक theoretical subject जैसे अगर मैं लॉ ही पढ़ रहा हूँ तो लॉ का एक सेकेंड चैप्टर या सेकेंड रीडिंग कर लूँगा वापस 8:45 to 10:45 को which results in 2 hours of studying once again. 10:45 to 11:30 I used to have my breakfast too and मेरा एक फ्रेंड आता था मेरे घर पे जिसको बहुत सारे डाउट्स होते थे तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि मेरे ब्रेकफास्ट टाइम पे आ जा so that my time is saved in the sense that मुझे स्पेसिफिकली कोई टाइम अलोकेट नहीं करना पड़ रहा है तो मैं ब्रेकफास्ट करते करते मैं उसके डाउट्स भी सॉल्व कर लेता था. 11:30 AM to 1:30 PM को वापस मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाई करता था. 1:30 to 2 PM was my lunch time. मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, I used to have lunch at 12:30 PM लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, मेरे डैड हमेशा 1:30 PM को आते थे and I always wanted to spend some time with my family, with my parents as well and lunch and dinner were the only 2 instances where I could spend time with them because पूरा दिन मेरा पढ़ाई में जाता था. So therefore मैंने लंच का टाइम चेंज कर दिया, 1:30 PM को रख लिया and therefore my dad used to come from his office at 1:30 and उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता था हाफ एन आवर लंच खाते खाते. 2 PM to 4 PM में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाता था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं FR कर रहा हूँ तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा के 2 PM to 4 PM पढ़ाई करता था which results in 2 hours of studying and 4 PM to 5:30 PM मेरा ऑलमोस्ट ब्रेक टाइम होता था बट इसमें ब्रेक में भी आई यूज्ड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव ओनली. 4 to 4:30 PM में हमेशा टेम्पल को जाता था. सो आई एम अ जैन बाय रिलीजन तो हमारे इसमें मारा साहब का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर आई यूज्ड टू गो टेक देयर ब्लेसिंग्स एंड आई यूज्ड टू लर्न सम ऑफ द अदर रिलीजियस स्टफ दैट यूज्ड टू हेल्प मी इन माय डे टू डे लाइफ एज वेल. Spirituality and meditation and being religious, that is something which I am a big fan of honestly and that has all come because of my mother only and she is a very very religious person. तो हमारे इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है राइट, लाइक पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट होता है. तो जो भी तुम्हारे सिंस होते हैं राइट, यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द सिंस विच यू हैव डन इन योर प्रीवियस लाइफ यू हैव टू गेट देम कॉम्पेंसेटेड एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जहाँ पर आपको बहुत सीखने को मिलता है एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू गो टू अ टेम्पल जस्ट फ्रॉम 4 to 4:30 PM. एक्चुअली ये टेम्पल नहीं होता है बट वहाँ पर जाके हम लोग हमारे सेंट्स जो होते हैं उनके ब्लेसिंग्स रहते हैं. फिर 4:30 to 5 PM में जॉगिंग ट्रैक पे जाता था एंड वहाँ पर मुझे आज भी याद है मैं रिविजन लेक्चर्स देखता था. तो जॉगिंग करते करते मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ CA फाइनल के स्टडीज़ का दिमाग में चलता रहता था एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स बिकॉज मुझे पता है कि जॉग करते करते मैं तो रिफ्रेश हो ही जाऊँगा तो गाने सुनने की जगह मैं कोई रिविजन लेक्चर सुन लेता था. फिर 5 to 5:30 घर पे आने के बाद थक जाता था बिकॉज जॉगिंग करके आता था तो इवनिंग
स्नैक्स खा लेता था एंड 5:30 to 7:30 अगेन मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लेता था 2 घंटे के लिए। 7:30 to 8 PM अगेन डिनर टाइमिंग होता था। 8 to 9:30 PM मेरा वापस लास्ट का 1.5 आवर्स का स्टडी स्लॉट होता था जहाँ पर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही सॉल्व करता था, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि लंच करने के बाद तुमको नींद आती है एंड दैट्स वाई आई थॉट कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं मैं सेकेंड हाफ में करूँगा दिन में, बिकॉज अगर मुझे नींद आ रही है तो आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू ओवरकम बाय सॉल्विंग अ सम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आज भी याद है कि अगर मैं SFM का क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था अगर उसका आंसर राइट आता था, एंड पूरी नींद उड़ जाती थी अगर मैं पेन से एक दूसरे पेपर पे सॉल्व करता था। 9:30 to 10 PM मेरे जितने भी डाउट्स होते थे मैं मेरे सर को कॉल करता था या तो मैं मेरे फ्रेंड को कॉल करता था जो हॉस्टल में था, एंड उससे मैं मेरे सारे डाउट सॉल्व करवा लेता था। एंड 10 PM आई यूज्ड टू स्लीप शार्प बिकॉज मुझे पता था कि मुझे 5 AM को उठना ही है और 7 घंटे की नींद तो मिनिमम चाहिए, अदरवाइज आई वोंट बी एफिशिएंट। सो दिस वाज माय टाइम टेबल ड्यूरिंग माय CA फाइनल्स लीव, एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक राइट, तो ब्रेक में मैं यही इंश्योर करता था कि आई एम जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, और आई एम गोइंग फॉर अ जॉगिंग ट्रैक, और आई एम प्लेइंग सम ऑफ द अदर स्पोर्ट और एक्टिविटी। आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम वॉचिंग अ मूवी और स्पेंडिंग टाइम ऑन नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा बाद में, तो आपके दिमाग में सिर्फ वही चलेगा पूरे टाइम। दैट्स व्हाई आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ऑल ऑफ यू नॉट टू कंज्यूम कंटेंट विच विल डिस्ट्रैक्ट यू आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, नॉट टू हियर म्यूजिक ऑल्सो अगर आपको लगता है कि वही गाना आपके दिमाग में चलेगा। आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स पे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आते हैं और वही गाने दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर आप वो कंटेंट कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होगे। दैट्स व्हाई आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। पता है इसमें आप ये सोचोगे कि इतना सारा कैसे पॉसिबल होता है, लाइक मोबाइल फोन नहीं यूज करना या तो एडिक्शन जो होते हैं वो कैसे काउंटर करते हैं। मैं आपको बता दूं तो मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट था टू ड्रिंकिंग कोका कोला। आई वॉज एन एडिक्ट ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा ऑल्सो, मैं तो हफ्ते में 2 बार पिज़्ज़ा खाता था। एंड आई वॉज ऑल्सो एन एडिक्ट ऑफ प्लेइंग गेम्स एज वेल। मतलब बचपन में मुझे आज भी याद है कि मैं GTA Vice City बहुत खेलता था, काउंटर स्ट्राइक 1.6 बहुत खेलता था, NFS मोस्ट वांटेड बहुत ज़्यादा खेलता था, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, एंड टेम्पल रन जब वो 2011 में आया था मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ज़्यादा खेलता था मेरे मम्मी के मोबाइल पर। बट मुझे आज भी याद है कि मैंने ये सारे एडिक्शन जो है वो काउंटर किए थे। मैं बताता हूँ कैसे किए थे। तो मैंने बेसिकली ये सारे गेम्स मेरे मम्मी के मोबाइल से डिलीट करवा दिए थे बिकॉज आई डेंट वांट टू प्ले देम। फिर जो भी बाकी गेम्स है GTA Vice City, NFS, वो भी मैंने कंप्यूटर से डिलीट कर दिए थे। द बेस्ट वे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इज टू कंप्लीटली एलिमिनेट इट। फिर जो पिज़्ज़ा और कोका कोला का एडिक्शन था राइट, तो हमारे जैनिज्म में अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पचकान, जहाँ पर इट मीन्स दैट यू टेक एन ओथ। ये होता है ना, लाइक यू टेक अ प्रॉमिस। तो मैंने पचकान ले लिया था कि मुझे 3 मंथ्स तक ये कंज्यूम करना ही नहीं है, एंड दैट वाज द सेल्फ कंट्रोल विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज वो जो अर्ज होती है ना तुमको कुछ कंज्यूम करने की या तो कुछ खाने की, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल दैट देन यू विल बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ट्रेट्स इन माई ओपिनियन। एंड इफ यू आर एबल टू सेल्फ कंट्रोल और इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर अर्ज ऑफ डूइंग एनीथिंग इन लाइफ इन पर्टिकुलर, you will be able to go miles ahead in your life. Trust me and mark my words. That's the best way to avoid addiction. As it is rightly said, right? Addiction is when you can stop but you don't want to, and when you want to stop you can't. That is addiction. And lastly मेरे को सिर्फ यही बात कहनी है कि अगर आपके टारगेट्स अचीव भी नहीं होते राइट, अगर आपका एक चैप्टर रह जाता है डे के एंड पे, और इट डजंट मीन दैट इट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने अगर डिसाइड किया था आज मुझे 3 चैप्टर्स खत्म करने, लेकिन 2 चैप्टर्स या 2.5 चैप्टर्स ही खत्म हो पाते थे। तो मैं क्या करता था, नेक्स्ट डे पे सुबह 5 बजे उठ के फर्स्ट 1 आवर या फर्स्ट 1.5 आवर्स में वो पूरा खत्म कर लेता था, सो दैट आई डोंट हैव टू ऑलवेज जस्ट कीप कंप्लेनिंग कि यार मेरा तो ये चैप्टर हुआ ही नहीं। एंड जब भी मैं प्लानिंग करता था राइट, तो मैं बफर रखता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 15 दिन FR के लिए दिए तो मैं 15 नहीं 17 दिन देता था, बिकॉज मुझे पता है 2 दिन का कुछ ना कुछ डिले होगा एंड 2 दिन का बफर रखना जरूरी है। सो अगर आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते तो ऐसा मत सोचना कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा। आपको ये सोचना है कि किसी के भी टारगेट्स अचीव नहीं होते, चाहे वो रैंक होल्डर हो चाहे वो नॉन रैंक होल्डर हो। आपको यही बिलीव करना है कि आपका टारगेट अचीव नहीं हो तो आपको नेक्स्ट डे पे कवर अप करना है एंड थोड़ा सा बफर रखो ताकि आपके सारे टारगेट्स अचीव हो जाए। एंड आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत डिसिप्लिन है, तो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, ये इतना तो मतलब बहुत ही बोरिंग है। अगर आपको लोग बोलते हैं ना कि स्टडिंग इज बोरिंग, डिसिप्लिन इज बोरिंग, CA कोर्स इज बोरिंग, जस्ट टेल देम दैट बोरिंग थिंग्स विल मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। As it is rightly said guys, discipline is boring but discipline is successful. And if you really want to become successful in your life, have a disciplined routine, have a consistent routine, and trust me, there is nothing in this world that will stop you from becoming successful and achieving your goals. I hope you could find some motivation in this video. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.